So a very warm welcome to you, Gaurav Roy Chaudhary. So we have him today in the next episode of this interview now. So he has recently converted SIBM Pune this year itself, and he has been a very good student. So a very big congratulations to you, Gaurav, first of all, and welcome. Thank you so much, Dipanshu sir, and thank you so much to the entire Mockzone team and Shivam Gupta sir for having me on board today. Thank you very much. Yeah. So Gaurav, could you please briefly tell us about yourself? Okay, so my name is Gaurav Roy Chaudhary, and I come from Durg, Chhattisgarh. So basically, I've done mechanical engineering, and if I talk about my CATs, it's like 9.8 CGPA in 10th, 85.2% in 12th, and 9.25 CPI in my graduations. Along with that, I have been to public speaking, oration, presenting things. These are like my forte, and these are like genuinely oxygen to me. And I do have my YouTube channel having 11,000 plus subscribers. And I genuinely started that as my hobby, but now I consider this something out of my profession in long term perspective. And I started making videos regarding science and technologies, but then I started revolving around various contents, whether they were freelancing or how to present yourself in to be at podium, because I have won 25 plus accolades, national level debate and uh, Okay. innovative idea presentation competitions, case study competitions. So everything जो भी मैंने अभी तक लाइफ में किया है, put on YouTube, and अगर 1% भी किसी का जीवन बेहतर बन पाए तो मेरा यही लक्ष्य रहा है from the beginning. So this is That's about my great. everything. That's great, Gaurav. So, Gaurav, how did you start your MBA preparation journey? So, like, in which year did you start and how did you come across till this particular year now? ओके, तो दीपांशु, ये लाइक जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स की रही है, बिकॉज Okay. अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो आई वॉज गेटिंग अ सीट एट एनआईटी रायपुर. आई कम फ्रॉम छत्तीसगढ़, बट आई वॉज नॉट गेटिंग अ ब्रांच ऑफ माई चॉइस. तो मैंने वहां पर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग छोड़ी एंड आई टुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीट एट भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग. इट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन छत्तीसगढ़. सो वहां पर मेरा विजन ऐसा था कि आई हैव टू गो फॉर एमटेक एंड ऑल. तो दैट टाइम मैंने वैसा ड्रॉप किया. उसके बाद मैंने गेट इनटू इंजीनियरिंग. मुझे लगा कि ओके, अलोंग विथ एमटेक, द फोर्टे दैट आई एम हैविंग, मैं सोसाइटी को ज्यादा बेटर सर्व कर सकता हूँ एमबीए के माध्यम से. तो दैट्स व्हाई आई चोज एमबीए. बट डिले में ऐसा था कि लाइक एमटेक छोड़ा है तो एमबीए क्यों करना, शुड गो फॉर आईआईटीज एंड एमटेक एंड ऑल. तो वहां पर मुझे काफी डिले हो गया डिसीजन लेने में कि शुड आई गो फॉर गेट और कैट. तो मैं स्टूडेंट्स को यही थोड़ा अपना मैसेज देना चाहूंगा कि डिसाइड अर्ली. आई स्टार्टेड वेरी लेट. When I graduated in 2021, I started that time. So, and I started in January 2021. तो मुझे completely 2 साल लगे अपनी जर्नी को लाइक आज यहाँ पहुंचने में. इफ आई वुड हैव स्टार्टेड थोड़ा पहले तो आज थोड़ी कम एज और पहले एज में आई वुड हैव इनटू मच बेटर इंस्टीट्यूट. ऑल्दो दिस इज एसआईबीएम पुणे मेरे ड्रीम में भी नहीं था ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है. बट अगर आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट करते हैं तो पर्सपेक्टिव आपको और मिलते हैं लाइफ में. Right. So, that's very inspiring. So, those who don't know about Gaurav, so he has almost 2 to 3 years of gap, but still he was able to convert SIBM Pune. So, can you share us with that? Like, what motivated you actually? And also, apart from this, he like almost, if you say he failed almost 25 examinations, but I wouldn't call that. Those are 25 different experiences he had in his life. So, can you share about like what motivated you and how did you get that never give up mentality? So that's very inspiring. So we would definitely like to know about that. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. तो सबसे पहले ऐसा था, क्लैरिटी बहुत पहले से थी कि एमबीए एक ही बार करनी है लाइफ में. तो अगर मैं 30 की एज में भी एमबीए करता हूँ दैट विल बी टोटली फाइन टू मी, बट मुझे टॉप 20 से नीचे एमबीए नहीं करना था. मैं 10-15 हजार की भी नौकरी कर लूंगा, आई विल बी टोटली कंटेंटेड विद दैट. बट अगर मैं टॉप 50, टॉप 70, टॉप 80 से एमबीए कर रहा हूँ, मेरे लिए वो नहीं था. एंड यहाँ पे फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा प्ले मेरी लाइफ में किया है. बिकॉज जैसे कि आपने बताया, यस, आई फेल्ड 25 प्लस एग्जाम सक्सेसफुली, लाइक कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, टिस्नेट, एसआरसीसी, जीबीओ, जेबीआईएमएस, एमएचआरडी, सी मैट, एसएससीसी, जीएलसी, एचएसएल, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ईएसआईसी, न्यू इंडिया कॉर्पोरेट, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एसबीआई. तो जितने एग्जाम्स आई फेल्ड. एंड फील्ड ऐसा नहीं, वाज लाइक प्रिपरेशन कंटिन्यू. जैसे कि मैंने बताया ना, आई स्टार्टेड वेरी लेट, वो मेरी एक गलती थी. बट आई केप्ट ऑन इंप्रूविंग विद एवरी एग्जामिनेशन. एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आई वाज वेरी क्लोज.
बट आई डिडंट मेक टू। तो वहां पे मेरे पास चॉइसेस थी, मेरे पास हर समय चॉइसेस थी कि आई शुड सेटल टू एन एवरेज कॉलेज या फिर मैं अपने जो मेरा जो लक्ष्य लाइफ में मैं उसको परस्यू करूँ। तो वहां पे पर्सनली फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। बिकॉज अगर मैं अपने फादर का एग्जाम्पल दूं, बिकॉज मैं फैमिली को यहाँ पर इसलिए लाना चाहता हूँ बिकॉज हम सबके लाइफ में फैमिली का सबसे बड़ा रोल है। एंड हम जब जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं हम उनको भूल जाते हैं, हमको लगता है कि सब हमने किया है। तो मेरे एग्जाम्पल दो तो माय फादर वो रिटायर हो चुके थे 62-63 की एज में। वो मुझे एग्जाम सेंटर लेके जाते थे, 30 किलोमीटर अप 30 किलोमीटर डाउन, है ना। धूप में वो खड़े रहते थे, बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं होता था। और सर जब भी मैं पेपर बिगाड़ के आता था पापा कहते थे बड़े ही ठंडक बड़े ही शांत भावना के साथ कि कोई बात नहीं बेटा, अगला एग्जाम अच्छा जाएगा। वो जो ठंडक सर मुझे देती थी, उसकी वजह से ही आज मैं एसआईबीएम पुणे में हूँ। और आई बिलीव मैं एथिक्स इंटीग्रिटी और बड़ों के आशीर्वाद पे बहुत बिलीव करता हूँ। आज की जनरेशन भी करती है, कई कई लोग थोड़ा आगे और बढ़ चुके हैं, बट मेरे लिए ट्रेडिशन जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो बड़ों का आशीर्वाद हर समय रहा है और क्लैरिटी हर समय रही है कि एमबीए करना है तो बेस्ट जगह से करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सो दैट वर्क फॉर मी। That's very inspiring, Gaurav. So, Gaurav, like, what was your preparation strategy, especially for SNAP, if I would like to say? So, were you also preparing for CAT examinations, or were you straight into SNAP, or which you can say the other management entrance examinations or METs? So, what was your focus, or what were you primarily targeting? ओके, सो सर फोकस तो सिर्फ कैट ही था। एंड जब फर्स्ट ईयर मैंने कैट दिया, लाइक मैं ये भी कुछ पॉइंट्स अपने अनुभव से जोड़ना चाहता हूँ जो बच्चे गलती करते हैं कि कैट की कोचिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 30,000 40,000 50,000 की फीस देते हैं, बट 2-3 हजार का मॉक टेस्ट नहीं खरीदते, वहां पैसे बचाते हैं। तो प्लीज ये गलती मत करिए, क्योंकि ये गलती मैंने की थी फर्स्ट टाइम कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में लाइक मॉक्स बाद में देते हैं। आई केप्ट ऑन, मैं टालते गया और वो एग्जाम डे में मुझे बहुत बुरी तरीके से हिट किया। 2001 का 2021 का मेरा एग्जाम वैसे खराब हुआ। 2022 में लाइक मैंने उसको इम्प्रूव किया, 40+ मैंने मॉक्स दिए, अच्छे से एनालाइज किया। एंड जितने 3-4 कोचिंग्स के मैंने मॉक्स लिए सबको एनालाइज किया, बट एग्जाम के दिन फिर से मेरा पेपर खराब चले गया। बट आई बिलीव अगर आपकी प्रिपरेशन फंडामेंटली फाउंडेशनली अच्छी है तो आपको माइंडफुलनेस चाहिए। माइंडफुलनेस के साथ आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एंड अगर आपका टारगेट सिर्फ ब्लैक ही है तो वो डिफरेंट केस है, बट मेरे साथ वैसा नहीं था। मेरा टॉप 20 था तो मैंने एसआईबीएम पे हिट किया। तो फोकस मेरा था कि लाइक फाउंडेशन अच्छा करना है। इफ आई टॉक अबाउट क्वांट्स, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लाइक जो इंजीनियर्स हैं बट क्वांट्स बहुत खराब है, नॉन इंजीनियर्स है तो क्वांट्स बहुत अच्छा है। दे आर गेटिंग इनटू बिजनेस एनालिटिक्स। इफ आई टॉक अबाउट लाइक जो मेरा यूट्यूब चैनल है विक्ट्री लैब, उस पर मैं मेरी फ्रेंड के इंटरव्यू में ला रहा हूँ। सो वो अभी लाइक उन्होंने बीएमएस किया है, तो कॉमर्स या इस डोमेन से, नॉन टेक्निकल डोमेन से। नाउ शी इज गेटिंग इनटू आई एम काशीपुर बिजनेस एनालिटिक्स। तो शी इज काइंड ऑफ सुपर गर्ल। तो ऐसा कुछ नहीं है, माइंड में कुछ ऐसा प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होने चाहिए। तो क्वांट सर मैंने वैसे प्रिपेयर किया। एलआरडीआई पे मैंने सेट सॉल्व करते थे। एंड मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के समय बिल्कुल स्टेबल नहीं था सर। ये वन ऑन वन इंटरेक्शन, आई डोंट वांट टू बी लाइक सुपरमैन एंड, और मैं बहुत ही एवरेज बैकग्राउंड से आता हूँ एंड मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं प्रोडिजीज को बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट करना चाहता। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग, ओरेशन, रिसर्च पेपर्स, मैं फ्रीलांसिंग करता था, मेरे क्लाइंट्स थे अक्रॉस द ग्लोब, वेबसाइट्स के लिए मैं काम करता था। तो इतने सारे काम को छोड़कर सिर्फ पढ़ने बैठना मेरे लिए टफेस्ट चीज था। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट मुझे वो करना पड़ा। तो अगर आप लाइक मल्टीटास्किंग करते हैं तो प्रिपरेशन जर्नी के दौरान सिर्फ पढ़िए। उस समय एक्स्ट्रा करिकुलर्स है इस तरफ ध्यान मत दीजिए, दो नाव पर पैर मत रखिए। तो बट जब सर मैं एलआरडीआई सॉल्व करने जाता था सेट, तो मैं बहुत हरी में रहता था, मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। तो एलआरडीआई में एन नंबर ऑफ सेट पे ज्यादा सॉल्व करने को जाता था रादर देन क्वालिटी, कि मैं अपने दिमाग को ओपन करूं। तो मैंने वो गलती की एलआरडीआई के दौरान। एंड वीआरसी के दौरान सर मुझे रीड करना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टू बी लाइक मुझे ओरेटरशिप, आई बिन टू ओरेटरशिप। तो आई बिलीव जितना अच्छा हम पढ़ेंगे उतना अच्छा हम बोल पाएंगे, उतना अच्छा हम लिख पाएंगे। तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो आई लाइक रीडिंग गुड लिटरेचर एंड ऑल। तो पढ़ना काफी अच्छा लगता था, तो वो नेचुरली मेरे पे आता है। तो इन दिस वे आई हैंडल्ड। Okay, so basically तुम ज्यादा focus थे for CAT, but it somehow helped the preparation with your SNAP as well, right? So SNAP के लिए तुमने कितने mocks लिखे थे? Like how many mocks did you give for SNAP?
ओके सर, तो जब सबसे पहले 2021 में लाइक मैंने 2 फुल ईयर दिए, तो 2021 में स्नैप के लाइक काफी मॉक्स लिखे, काफी तो नहीं बट 5-6 कुछ मॉक्स लिखे थे, बट अच्छे थे एनालाइज वगैरह करके। बट इस बार लाइक एक मॉक मैंने ऐसे ही दे दिया एंड एग्जाम देने चले गया। तो और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी है जिन्होंने लाइक 15-20 मॉक्स लिखे हैं एंड वो आज एसआईबीएम में नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 लिखे एसआईबीएम में है। तो ये बहुत ही डिफरेंट गेम हो जाता है सर, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरे छोटे से अनुभव से। एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट भी, तो एक मॉक ऐसे ही लिख दिया हवे में, एंड बिकॉज प्रिपरेशन थी, वो माइंडफुलनेस नहीं था। राइट। एंड और वो स्नैप के रिगार्डिंग माइंड में स्ट्रैटेजी पहले से बनी हुई थी कि 60 मिनट का पेपर है, तो 15 इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसको 8 मिनट में निपटाना है। उसके बाद रीजनिंग में आना है, उसमें 20-25 मिनट कुछ देने हैं, आखिरी में क्वांट को सॉल्व करना है। एंड 45+ हमको स्कोर चाहिए। तो करीब 47-48 खुद से बनाएंगे, 7-8 गेसिंग करेंगे, +4-1 की स्ट्रैटेजी से 52-53 हमारे बनने चाहिए 60 में। ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजी होती थी, सो एग्जीक्यूटेड ऑन दैट। राइट। तो लाइक, तो अगर मैं इसको सम अप करूं, सो बेसिकली if you have a strong foundation of the topics and the subject which you are studying, followed by a good strategy to attempt the paper, so that is sufficient enough to crack any examination. ठीक है? So if you believe yourself and strong करो अपना foundation, ठीक है? So that is the key to success in examinations like these. ठीक है? So Gaurav, so since you are having quite a gap, so how were you able to या convert? Like, wasn't that difficult to convince the interviewer that I was doing all these things, but still that creates a negative mindset in many of the aspirants as well. कि convert हो पाएगा या नहीं? So what kind of a mindset was that with which you used to appear for the interview? तो mindset हमारे साथ share करना चाहोगे? डेफिनेटली सर, ये जो गैप वाली चीज है ना, ये बहुत ज्यादा हवा बनी हुई है, तो आई वॉन्ट जेन्युइनली वुड लाइक टू ब्रेक दैट। अगर मैं अपनी Sure. बात करूँ तो 12th के बाद मेरे 1 साल गैप है, आई प्रिपेयर्ड फॉर द आईआईटी जेईई प्रिपरेशन एंड ऑल। उसके बाद आई ग्रेजुएटेड इन 2021, तो इधर 2 साल, तो टोटल 3 साल गैप है मेरे। एंड मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज एसआईबीएम में पढ़ रहे हैं, उनका 4 साल का गैप है, वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, देन दे आर इनटू एसआईबीएम। एंड विद अ प्रॉपर जेन्युइन लाइक वर्क प्रोफाइल, अगर आपने ऐसा कुछ किया एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड ऑल ऐसा कुछ, तो यू कैन जस्टिफाई 10 years ऑफ गैप। एंड आई लिटरली मीन इट। गैप कोई बड़ी चीज नहीं है। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं हवे में बात नहीं करूंगा, जब वो मुझे पूछते थे कि आपके 2 साल गैप है, व्हाट यू वर डूइंग इनटू दिस, क्या करते थे, तो आई जेन्युइनली टोल्ड देम कि आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल, बट आई वांटेड टू लाइक एक्सपैंड माय फोर्टे इन एवरी डोमेन, आई वांट टू स्पेशलाइज इन द मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली इन द एचआर डोमेन। सो ये क्लैरिटी मेरे पास पहले से थी, सिंस आई हैव वर्कड हैंड्स ऑन फॉर द लास्ट 3-4 years। सो फॉर मी, why MBA was never a thing for me, rather when MBA is the thing for me. So I was venturing into entrepreneurial exploration. So what I did is I took my online clients, because मेरे YouTube चैनल के साथ साथ मेरे और clients होते थे जिनको मैं like consultancy देता था। So I shifted my online clients into the offline mode। इसमें दो चीजें होती थी। पहले तो लाइक मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती थी, and साथ में अपनी प्रिपरेशन को मैं पहली प्रायोरिटी रख पाता था। सो अगर इतनी जेन्युइनली कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो आई बिलीव आप 10 years के गैप को भी जस्टिफाई कर सकते हो। तो और इतनी, और क्योंकि हमारे साथ पैनल पे जितने बच्चे बैठते हैं ना सर, मोस्टली लाइक 30-40% बच्चों का गैप तो होता ही है। तीन Right. साल 4 साल 2 साल, तो गैप कोई बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। Yes. So the advantage over here is with SIBM especially or symbiosis colleges is that you can easily justify the gap. If you are scoring high in the aptitude examinations, you will get a call, and it's totally up to you how you convert that call with justifying this. ठीक है? So तुम्हारे पास पूरी opportunity है to justify your gap here. So don't worry and start focusing on the examination. So that's what I can conclude at least from this part. जी सर। So Gaurav, it would be too early to ask, but till now, I guess you would be there for about a week now, right? एक हफ्ता ही हुआ होगा. So how is life till now for the first 1 week at SIBM? So can you share जी सर। जी with सर, us? बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत लंबी बात हो जाएगी। इस पे जाने से पहले एक पॉइंट मैं और थोड़ा ऐड करना चाहूंगा Sure. रिगार्डिंग कन्वर्शन एंड ऑल, कि जैसे अराउंड 70,000 बच्चे देते हैं स्नैप, टॉप 2 परसेंटाइलर को बुलाया जाता है एसआईबीएम एससीएमएचआरटी के लिए, बोथ आर इक्वली ग्रेट कॉलेज। तो अराउंड 1400 बच्चों को बुलाया जाता है। एंड
एंड सर ऐसा है कि लाइक 60 में जो स्नैप का एग्जाम होता है, जब वो 50 में डाउन होता है, कंप्रेस होता है, तो बहुत मार्जिनल डिफरेंस बन जाता है। जैसे सपोज मेरा परसेंटाइल था 99.4977, किसी का था 98 परसेंटाइल जिसने जस्ट बॉर्डर क्रॉस किया, बट वो सर कंपोजिट स्कोर जब 100 में लिया जाता है, तो जो वो 60-50 में कन्वर्ट होता है, तो बस 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जिन बच्चों ने लाइक जस्ट बेयर मिनिमम ही बॉर्डर क्रॉस किया है, दे कैन ऑल्सो गेट इनटू एसआईबीएम पुणे। ये बात, बच्चे बहुत Right. डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका 99.9392 है, बट उन्होंने कन्वर्ट नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज उन्होंने जीडीपीआई को बहुत हल्के में ले लिया। तो 4 स्टेजेस होते हैं। इस बार उन्होंने गेमिफाइड बैटल लॉन्च किया, एसआईबीएम पुणे वन ऑफ द फर्स्ट कॉलेजेस है जिन्होंने एआई के हेल्प से गेमिफाइड बैटल एज अ पहला बैरियर ऐसा रखा। उसके बाद वैट है, देन पीआई एंड ग्रुप एक्सरसाइज, जिसका सर वेटेज 50 तो हमारा स्नैप का हो जाता है, 30 हमारा Right. पीआई का हो जाता है, एंड 10-10 ग्रुप एक्सरसाइज एंड वैट। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपका परसेंटाइल जस्ट आपने बॉर्डर क्रॉस किया है, तो भी आप बहुत पीछे नहीं हो, जिसका 99.99 है, सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। तो अगर आप चारों स्टेजेस बहुत अच्छे से देते हो, यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू एसआईबीएम एससीएमएचआरडी। तो ये मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। Great. जी। Great. Yeah. So Gaurav, now, like, how has या been your experience till now at SIB? Yeah, सर I'm इट्स waiting for that as well. मेस्मराइजिंग सर, लाइक डेफिनेटली सर, लाइक आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बिकॉज मैं बहुत एक छोटे से जगह से आता हूँ, दुर्ग भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में। तो वहां से आने के बाद यहाँ पे इतने वैरायटी ऑफ लोग मुझे मिल रहे हैं, इतनी पर्सपेक्टिव हमको मिलती है, एंड इन यहाँ का जो लाइक पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, एंड साथ में जो टाइम टेबल ये फॉलो करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज एंड ऑल। सुबह लाइक 7 बजे से रात के 1:30-2 बजे तक हम इतने माइंडफुली ऑक्यूपाइड रहते हैं, लाइक सारे इंसाइट्स देना तो अभी पॉसिबल नहीं है, Great. थोड़े से प्रोटोकॉल्स है, बट इट्स अमेजिंग। लाइक पहाड़ों के बीच कॉलेज है। लाइक हम जब पुणे सिटी से होके आते हैं कैंपस में, तो ऐसे गो लाइक जो लावले कैंपस है, तो एक्चुअली लाइक यहाँ पे लाइक हेवन है, जेन्युइनली हेवन। तो इट्स अमेजिंग सर। एंड रिगार्डिंग Great. कॉर्पोरेट्स Great. एंड कंसल्टेंसी एंड कॉर्पोरेट जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वी ऑल नो एसआईबीएम इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन दैट। गोदरेज, लाउडेन वगैरह बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो एंड साथ में पीयर ग्रुप जो हमको मिलता है, एंड सीनियर्स का भी, हमारे सीनियर्स दे आर लाइक एल्डर ब्रदर्स टू अस एंड एल्डर सिस्टर्स या एल्डर फ्रेंड्स टू अस। तो यहाँ पर कल्चर इज अमेजिंग, लाइक स्टूडेंट, पूरा स्टूडेंट ड्रिवन कल्चर है, एंड फैकल्टीज इतने ट्रस्ट करते हैं स्टूडेंट्स पे कि स्टूडेंट्स एक प्लेस कॉम कमिटी हो या एक लाइक 100 टाइप की कमिटीज है हमारे यहाँ पे, मार्केटिंग की है, एचआर की, फाइनेंस की, ऑप्स की। सो एवरी कमिटी में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि खुद को प्रेजेंट करने के साथ में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, इफ आर इनटू टॉप 20-25 कॉलेजेस। तो इट्स रियली गुड। That's great to know, actually, Gaurav. So, Gaurav, one last question then. Okay. So, those who have started preparing for SNAP and other non-CAT examinations, let's talk about in that way. So, what would be your tip? Like, if they are preparing along with the CAT examination, so what should be their approach and what uh, insider hints you want to give them, like insider tips you want to share with them? So, can you please give us that? डेफिनेटली सर, लाइक मेरी थोड़ी सी समझ से मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। फर्स्ट तो क्वांट Sure. तो सबके लिए सेम है। तो और क्वांट में भी जग जाहिर है कि 50% तो आपका अरिथमेटिक्स है, तो आप एटलीस्ट उसको तो करिए अच्छे से। अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, लाइक पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी आल्सो प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल, स्पेसिफिकली इन एनमैट। एनमैट में पीएनसी प्रोबेबिलिटी काफी भरा रहता है, बट स्टिल आप जो 50% ऑफ द टोटल या 60% ऑफ द टोटल है क्वांट्स का, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आप उसको करिए। क्योंकि बच्चे उतना भी नहीं करते सर, उसको भी छोड़ देते हैं। तो एटलीस्ट फर्स्ट तो उतना करिए। सेकंड, वर्बल के लिए रीडिंग हैबिट प्लीज बनाइए, बिकॉज रीडिंग हैबिट फाउंडेशन है। एंड रीडिंग हैबिट ऐसा नहीं कि आपको लाइक मैं तो था हिंदू पढ़ता था, थोड़ा जियोपॉलिटिकल अच्छा लगता था, बट आपके साथ वैसा नहीं है। आपको जो पढ़ना अच्छा लगता है पढ़िए। अगर आपको मैगी खाना अच्छा लगता है तो मैगी के बारे में पढ़िए कि वो कैसे, उसका प्रोडक्शन लाइन कहाँ पे सेट हुआ, एंड उसके कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल, या एनीथिंग जिसके, अब जैसे स्पेसिफिकली मुझे स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट है, तो मैं इस्कॉन या शिला प्रभुपाद जो हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके बारे में काफी पढ़ता हूँ। तो जिनको जो पसंद है, बट रीडिंग हैबिट जरूर बनाइए। इससे आपको वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस एंड जो ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह आते हैं वो सारा आपका कवर हो जाएगा। तो वर्बल के लिए वो कर लीजिए। एंड रीजनिंग, जो जो रीजनिंग पार्ट होता है वो तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कैट का तो पूरा एलआरडी है, एंड बाकी नॉन कैट एंड बैंकिंग एग्जाम्स का पूरा सेपरेट है। तो उनके क्वेश्चंस लगाते रहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंडसेट रखिए। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडियोक्रिटी पे कभी सेटल मत होइए।
एंड अगर आप स्टिल यंग है, अगर आप 27-28 है, तो प्लीज प्लीज मेरे तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी खराब भी स्कूल में मत जाइए। आपके पेरेंट्स के काफी हार्ड एंड मनी लगे होते हैं, बहुत मेहनत की कमाए हुए पैसे हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। क्योंकि सर मेरी बात होती है मेरे फ्रेंड से जो कभी छोटे हैं, 21 साल के, 22 साल के, दे आर सेटलिंग इनटू पता नहीं कौन सा कॉलेज, पता नहीं क्या रश है लाइफ में। तो थोड़ा ठहराव रखिए। गर्ल्स का समझ में आता है कि दे वांट टू गेट इनटू मैरिज, उनके एक सिस्टम है सोसाइटी में, बट स्टिल अगर आपके घर से सब फैसिलिटी है तो प्लीज एक बेस्ट बी स्कूल पे टारगेट करिए एंड पूरा झोंक दीजिए। सो दिस एंड एक और पॉइंट, if you are into relationship or something, ये मैं अपने यूट्यूब वीडियोस पे भी बताता हूँ, प्लीज डोंट गेट इनटू अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, बिकॉज अब बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाद में समझेंगे, बट इस पे अगर आपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान इस पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या इसको आपने खराब कर दिया, तो आप लिटरली खून के आंसू रोएंगे और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। ये शब्द आप मेरे याद रखेंगे। तो ये बात आप अगर आप इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी से टेक अवे ले सकते हैं तो प्लीज इसको लीजिए, क्योंकि सर मैं अपने अराउंड में जितने देखता हूँ तो मोस्टली इसी से कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है। अगर वो चीज इसको संभाले तो दे कैन, वो आई एम अहमदाबाद ब्लैक की कुछ नहीं है उनके सामने, तो उनका फोकस एनर्जी पूरा डिविएट हो जाता है। तो बस इस पे ध्यान रखिए। Right. दैट्स इट सर। That's wonderful. And thank you so much, Gaurav, actually, for sharing with us all these insightful things. So, if I talk about, you couldn't be uh, a less than an inspirational for all those who are started preparing for these all these MBA preparation phase. So he's one of the best inspirational you could have. So I hope you have listened to him and you should be following his advices. Okay. So Gaurav, thank you so much for sharing all these things with our audiences. So once again, I would like you to thank Sorry you sir, once again. you are not audible for the last 15-20 seconds. Can you please repeat? Okay. So I'll repeat Yeah, it. So Gaurav, please yeah. sir. So thank you so much, Gaurav, for taking out your time and sharing all these insightful things with our audience right here. And you couldn't be a much better inspiration to all those who have started their preparation journey. And I hope everyone must have listened to you and would definitely would like to follow your strategy. And even if you feel demotivated, just write down his points, whatever he has mentioned during the interview, his inspirational journey. It would definitely motivate us all. So thank you so much, Gaurav, and we wish you all the best for your future endeavors as well. Thank you so much. Thank you so much, Dipanshu sir, and I would like genuinely want to thank Moxon MBA preparation and Shivam Gupta sir, बिकॉज मैं सर से कैसे जुड़ा कर बताऊं तो लाइक JBIMS MHRD का जो एग्जामिनेशन होता है मई के महीने में 2022 के अराउंड सर से मैं जुड़ा था, तो वहां पे आई टुक योर मॉक्स एंड ऑल एंड दे वर लिटरली अमेजिंग, बट समहाउ लाइक कुछ चार पांच मार्क्स की वजह से डिडंट एबल टू लाइक कन्वर्ट एंड ऑल। बट सिंस देन मैं सर से लिटरली लाइक ऑल दो मैंने सर का लाइक आपका क्रैश कोर्स से लिया था, बिकॉज मैं बहुत अवेयर नहीं था, ये मेरी बदकिस्मती थी, अदरवाइज आई वाज इनटू वन ऑफ द IIMs, top IIMs, but still. तो शिवम गुप्ता सर लाइक वॉज लिटरली एज एन एल्डर ब्रदर टू मी। कभी भी उनको फोन लगाओ, कभी भी रात के 2 बजे भी लगाओ कि सर ये दिक्कत आ रही, ही विल हेल्प आउट, बिकॉज आई बीन इन टच विथ मेनी मेंटर्स, सब अमेजिंग है, बट शिवम गुप्ता सर की अगर मैं USP बताऊं तो वो कभी भी एक सर है वैसा वो नहीं रहते, वो लिटरली हम स्टूडेंट्स के लेवल तक आते हैं एंड एज एन एल्डर ब्रदर ही टीचर्स अस। तो मेरे लिए उनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है एंड आज भी रहा है। लाइक गेटिंग इनटू SIBM आज भी मुझे कभी पर्सनली कुछ पूछना रहता है स्पेशलाइजेशन के बारे में कि अपना 1 साल या 2 साल का ट्रैजेक्टरी कैसे रखूं, ही वॉज ऑलवेज इनटू गाइडिंग मी। So more than thank you to Mock Zone, yeah, MBA And preparation. you are always welcome to here, Gaurav. You can ask us anytime if you have any doubt or problem. You can definitely ask us. Okay? Yeah, thank you so much, sir, because Yes. I was always be like इसी तरीके से मैं बात करता हूँ, मैं कभी भी फैंसी एंड मेरे से नहीं हो पाता सोफिस्टिकेटेड वे में। No, it's wonderful. It's a good Yeah, quality you have. बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सेशन है ये कॉर्पोरेट के लोग नहीं देखेंगे, बच्चे देखेंगे, और बच्चे तभी कनेक्ट होंगे, और ये उनकी करियर की बात है, यहाँ मनी मेकिंग की बात नहीं है। तो मैं 1% भी उनको लाइक गलत डायरेक्शन नहीं देना चाहता, तो इस वजह से मैं जेन्युइनली हार्ट आउट एकदम ओपनली मैं बात करता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी टुडे। Yeah. Thank you so much.